شیخ محترم طویل سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے اور قیمتی نصیحتوں سے نوازا اور الحمدللہ میسور کی عوام کو توحید کا درس دیا۔ محترم حاضرین، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث کے اسٹیجوں سے نہ من گھڑت واقعات، نہ من گھڑت کہانیاں، نہ قصے بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ ہمارے اسٹیجوں میں یا تو رب کا کلام ہوتا ہے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، بلا کسی تاخیر میں تاثراتی کلمات کے لیے جناب اسلم خان صاحب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا جماعت کی ایک متحرک شخصیت ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تاثرات کلمات ہمارے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں اس کے ساتھ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے تاثرات پیش کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، تاثرات وہ ہوتے ہیں، اس مجلس کو کیسے سجایا گیا ہے اس تعلق سے بولنا ہے۔ میں اس سے ہٹ کر کے جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناحیے سے میں ایک دو باتیں آپ تک پہنچ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظم عمومی صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا جناب اسلم خان صاحب، اور میسور کی جمعیت کے امیر جناب شاہ ولی اللہ صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت ہی عظیم شخصیت فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب حفظہ اللہ، اور دیگر معقر علماء کرام، صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور ضلعی جمعیت اہل حدیث میسور کے اراکین و ممبران اور ذمہ داران، میسور اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پیشرو خطیب سے آپ نے بہت ہی کھل کر اور بہت ہی حسین و خوبصورت تقریر سماعت فرمائی، جس میں معاشرے کی اصلاح کا پہلو بھی تھا، توحید کی حفاظت کا درس بھی تھا، اور شرک کی ذلت کا پیغام بھی تھا۔
कलेजा निकाल कर उन्होंने आपके सामने रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फज़लतुल शेख महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह को हौसला दे, हिम्मत दे, हासदीन के हसद से उनकी हिफाजत फरमाए और हम सब उलमा की हिफाजत फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही छोटी सी आयत का एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आए ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक तरफ पहले ईमान को खिताब किया और दूसरी तरफ उन्हीं मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि आए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये दोनों अजीब चीजें हैं। एक तरफ तो अल्लाह कह भी रहा है आए ईमान वालों, और फिर उन्हीं को मुखातब करके कह रहा है कि आए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें और आपको समझना चाहिए कि इस्लाम है क्या। दुनिया में हर शख्स जो भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अपने आप को मुसलमान तसव्वुर करता है। तो हर कलमा गो को ये सोचना चाहिए कि हम उसी इस्लाम पर अमल कर रहे हैं जो इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, और वही मुकम्मल दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, वही इस्लाम हम उसी पर अमल कर रहे हैं, या फिर वो इस्लाम जो हमने अपने बाप दादाओं से अखज़ किया है, उसी लिया है, पकड़ा और सीखा है, उस इस्लाम पर हम अमल कर रहे हैं। इतना याद रखिए, हर वो चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, आपके सहाबा ने दी, वो इस्लाम का हिस्सा तो होगा, लेकिन जो चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें नहीं मिली और आपके सहाबा के जरिए हमें नहीं मिली, वो चीज को इस्लाम हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम मुकम्मल ही हुआ है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। हर मुसलमान गौर करे, जो अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया वो दीन कौन सा था? वातममतु अलैकुम निअमती, और हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमत भी हमने पूरी कर दी, और खुलकर कहा वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं उसी दीन से, उसी इस्लाम से राजी हूँ, यानी जो मैंने मुकम्मल किया है, जो मैंने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, मैं उस इस्लाम से राजी हूँ। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हर आदमी अपने इर्द गिर्द ये तलाश करे कि हम जो अमल कर रहे हैं, हमारा जो काम है, क्या वो नबी अकरम ने हमें दिया? क्या वो जब अल्लाह ने इस्लाम मुकम्मल किया था तो क्या वो शक्ल मौजूद थी? हर चीज पर गौर करें। तीजा 40वां कोर्स, इसी तरीके से कब्रिस्तान में खड़े होकर अजान देना, या इसी तरीके से अजान के बाद सलात व सलाम पढ़ना, इन तक मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें नाजायज और हराम है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देखें क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था? क्या नबी अकरम के जमाने में ऐसा था? क्या जब इस्लाम मुकम्मल हुआ था तो क्या ये सारी चीजें थी? अगर थी तो इस्लाम, और अगर ये सारी चीजों का वजूद नहीं था तो वो इस्लाम नहीं है। गलती तो ये है हमारे जमाने की कि हम इसको ये समझ बैठे कि ये दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया है वही इस्लाम है। मेरे भाइयों, जब हम इसको ये कहते हैं कि मोहम्मद का दीन है इस्लाम, तो फिर बहुत से जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ से अपना पाला झाड़ने लगते हैं, अपना पल्लू, और कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे दीन को क्यों माने। और उनको बताया जाए कि हर नबी की यही दावत थी, हर रसूल की यही दावत थी, हर पैगंबर की यही दावत थी, और हर नबी ने यही दीन दिया था इस्लाम। शरअ लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को मशरू करार दिया,
ہم نے تمہارے لیے اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا. ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، جس کا حکم، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. اور نوح کے بعد جو پیغمبر اس دین کو لے کے آئے، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى نَقِيمُ الدِّينَ، اور اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی دیا تھا، موسیٰ کو بھی دیا تھا اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا. یہی دین تھا جو نوح کا بھی تھا، یہی دین تھا جو ابراہیم کا بھی تھا، یہی دین تھا جو موسیٰ کا بھی تھا، یہی دین تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو نیوتا دیا، نمنترن دیا، اور نبی اکرم کی زبان سے کہلوایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے. کیا؟ یا اہل الکتاب، آئے اہل کتاب، آئے کتاب والو، آئے زبور والو، آئے انجیل والو، آئے تورات والو، آئے یہودی و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ ایک ہی کلمہ ہے جو ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، ایک ہی کلمہ، اس کلمے کی طرف آؤ. ہم کہاں کہتے ہیں کہ تمہارا کلمہ الگ ہے اور ہمارا کلمہ الگ ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا وہ تمہیں کسی دوسرے دین کی، کیا کسی دوسرے مذہب کی دعوت دے رہا؟ نہیں، یہی کلمہ نوح کا بھی تھا، لا الہ الا اللہ. یہ الگ بات ہے کہ نوح کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ غور کر کے دیکھیں کہ پہلے جملے میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے. جو ٹیسٹ کلمہ منتر ہے، جو پہلا بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کبھی اور کسی زمانے میں نہیں بدلا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کی دعوت نوح کی بھی تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت موسیٰ کی بھی تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت عیسیٰ کی بھی تھی، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی. اسی لیے ببانگ طحل اللہ نے اعلان کروایا اور نبی کی زبان سے کروایا کہ اے نبی کہہ دو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جب وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہی اصل اسلام ہے. تو سارے نبیوں کی دعوت وہی تھی، اسلام کی وہی توحید تھا ان کا مشن. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. قرآن کی اس آیت پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر سموہ اور گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا. اس کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. پہلی بات صرف مسلمانوں میں یہ کلمہ نہیں ہے، ہر قوم میں ایک رسول آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت، ہر گروہ، ہر برادری، ہر ذات، ہر سموہ کے اندر ایک نبی کو ہم نے بھیجا. اور اس نبی کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور دوسرا پیغام وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی پوجا سے بچو، طاغوت کی عبادت سے بچو. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ طاغوت ہے. جس
اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی حاجتیں اور منتیں اور ضمانتیں کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد طلب کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ تو یہ ہر نبی کی دعوت رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ جب سارے نبیوں کا دین ایک ہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس دین کا نام کچھ بھی رکھ لیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اسلام ہی تھا سارے نبیوں کا دین۔ اللہ کا دین الگ نہیں ہے۔ جیسے اس نے ہوا چلائی تو وہ ہوا ہندو بھائیوں کے لیے الگ اور مسلمانوں کے لیے الگ، عیسائیوں کے لیے الگ اور یہودیوں کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو وہ بارش غیر مسلموں کے لیے الگ اور مسلمانوں کے لیے الگ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو سورج کی روشنی دی ہے وہ غیر مسلموں کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ، ایسا نہیں ہے۔ جب ہوا ایک، سورج کی روشنی ایک، بارش بھی اللہ کی جب سب کے لیے، تو اس نے اسلام جو دین جو مذہب اتارا وہ بھی سب کے لیے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب بامراد اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں کی طرف سے ایجاد کرتا مذہب تو ہو سکتے ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین صرف ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے اسلام۔ وہ دین ہے وہی جو نوح لے کر آئے تھے، وہ دین ہے وہی جو ابراہیم لے کر آئے تھے، وہی دین ہے جو موسیٰ لے کر آئے تھے، وہی دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اللہ نے کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا، ہر قوم کے اندر ہم نے ڈرانے والا بھیجا۔ جب اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا تو میرے بھائیوں دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اس لیے اگر کسی قوم کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو قیامت کے دن یہ قوم جہنم میں بھی نہیں جائے گی اور اللہ سے کہہ دے گی کہ اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، میرے پاس تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے کی تلقین کرنے والا ہی نہیں آیا تھا، تو پھر مجھے تو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں جب یہ کلیئر ہو گیا کہ سارے نبیوں کا دین اسلام ہے تو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرنا اور کوئی دوسرا دین تلاش کرنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کیا، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب تلاش کیا، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، کوئی دوسرا دین تلاش کیا، اللہ تعالیٰ کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں مانا جائے گا، اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین پر عمل کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَفِي الْآخِرَةِ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسلام سارے نبیوں کا دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سارے نبیوں کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلے گا۔ محمد رسول اللہ کا دین الگ نہیں ہے، یہ نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا اور عیسیٰ کا دین ہے، لیکن اب قیامت کی صبح تک دین چلے گا تو وہی دین چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف دین محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ محمد رسول اللہ نے وہی دین دیا جو موسیٰ کا تھا، وہی دین دیا جو عیسیٰ کا تھا، وہی دین دیا جو نوح کا تھا، وہی دین دیا جو ابراہیم کا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دین پر اب اللہ تعالیٰ نے آخری مہر لگا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب دین چلے گا تو اس طریقے سے چلے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ تو توحید کو سمجھنے کے بعد، اسلام کو سمجھنے کے بعد ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ ادخلوا فی السلم
काफा का मतलब पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाने का मतलब क्या है? अभी शेख रब्बानी साहब ने कहा था ना कि सिर्फ हम टोपी लगा के जलसे में आ गए और अपने आप को हमने समझ लिया मुसलमान है, जुमे हमने नमाज पढ़ ली और अपने आप को समझ लिया मुसलमान, गोश्त खा लिया और अपने आप को हमने समझ लिया मुसलमान। नहीं, काफा का मतलब यह है कि तुम्हारा उठना भी इस्लामी हो, तुम्हारा बैठना भी इस्लामी हो, तुम्हारा चलना भी इस्लामी हो, तुम्हारा शादी और ब्याह भी इस्लामी हो, तुम्हारी नमाज भी इस्लामी हो, तुम्हारा रोजा भी इस्लामी हो, तुम्हारा इस्लाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है हो। तुम्हारी अकल में इस्लाम के अहकामात आए या ना आए, लेकिन इस्लाम के सारे अहकामात को फॉलो करना है। हमारे पास उतनी महदूद अकल है कि हम नहीं सोच सकते हैं। अब आप सोचिए, नऊज़ बिल्लाह, किसी ने जहन में ये रख लिया कि हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये ख्यालात तुम्हारे जहन में आ रहे। हमें इस ख्याल को लाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे पास महदूद अक्ल है। हमारी अक्ल इतने बड़े सवाल का जवाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती है। इसलिए इस तरीके के सवालात जब जहन में आए तो फौरन नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, ला हौल पढ़िए और थपथपाइए और इन सवालात को अपने जहन में मत लाइए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी महदूद दी है। हमारे पास आंख में देखने की ताकत है, लेकिन महदूद चीज देख सकती है। जर्जीस साहब के सामने जो लोग हैं इनको हमें देख रहा हो, लेकिन जर्जीस साहब के पीछे कौन लोग हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर्दे के पीछे कौन लोग हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेंगलोर में जो लोग हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। यूपी और बिहार में कौन लोग हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने देखने की ताकत तो दी है, लेकिन महदूद ताकत दी है। हम अपनी आंख का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी इस आंख के अंदर सलाहियत है और ताकत है। हम सुनते हैं मेरे भाई, अभी हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सुनने की महदूद सलाहियत मौजूद है। इस वक्त अमेरिका की चीखों पुकार आप नहीं सुन रहे हैं। इस वक्त इस्राइल और फिलिस्तीन के मुसलमानों की चीखों पुकार हमें नहीं सुनाई दे रही है। इस वक्त सीरिया की चीखों पुकार हमें नहीं सुनाई दे रही है। इस वक्त बेंगलोर के ट्रेनों की आवाजें हमें नहीं सुनाई दे रही है। इस वक्त यूपी और बिहार और बंगाल के लोगों की आवाजें हमें नहीं सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि हम वहां की आवाज भी सुन सकें। कानों की ताकत भी महदूद है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो अक्ल दी है, जो दिमाग दिया, वो महदूद है, उसका दायरा महदूद है। मेरे भाइयों, अगर हम इस अक्ल से उसके दायरे से ज्यादा काम लेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग की नस फट जाएगी। इसलिए आप दिमाग से उतना ही काम लीजिए जितना इस दिमाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत दी है। तो इसलिए इस्लाम के बहुत से अहकामात ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसको हम समझने की कोशिश करें। जो बय्यनात वाज़ेह हैं उनको समझिए, जो मुश्तबिहात हैं उनसे पूछिए और उनसे बचिए, और जो बीच की चीजें हैं मेरे भाइयों उनके बारे में खामोशी अख्तियार रखिए, उनके बारे में कीलो काल मत कीजिए। हमारे असलाफ ने और सल्फ़े सालिहीन ने जिस तरीके से समझा है हमें उसी तरीके से रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हमारी अक्ल का एक महदूद दायरा है। जैसे सोना तोलने वाली है, गोल्ड होता है ना, आप किसी सुनार की दुकान पे जाएं, गोल्ड सोना जो तराजू तौलती है उसका एक दायरा है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम वजन करके वो आपको सोना दे देता है। लेकिन अगर किसी पहाड़ का टीला या किसी पहाड़ का टुकड़ा उस सोने की तौलने वाली तराजू पे आप रखोगे तो वो तराजू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि सानिअ ने उस तराजू को पहाड़ का टुकड़ा तौलने के लिए नहीं बनाया है। आप उसकी लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर वजन डालोगे तो तराजू टूट जाएगी। आपको दिमाग दिया है, आपके दिमाग में समझने और सोचने की एक लिमिटेड और एक महदूद सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। अगर इस अक्ल को उसके दायरे से बढ़कर आप इस्तेमाल करेंगे और अक्ल से उसके दायरे से बढ़कर सवाल पूछेंगे तो ये दिमाग फट जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और पागल हो जाओगे या आप मर जाओगे।
تو میرے پیارے ساتھیوں اپنے دماغ کا اتنا ہی استعمال کرو جتنی. اب آپ دیکھیے, آپ ابھی جائیے بنگلور میں, جائیے لکھنؤ میں, جائیے دلی میں, آپ نے دیکھا ہوگا گرین سگنل بھی ہوتا ہے اور ریڈ سگنل بھی ہوتا ہے. جیسی آپ کی گاڑی چوراہے پر پہنچی ریڈ سگنل ہو جاتا ہے. جب ریڈ سگنل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب نہ اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھاؤ گے, نہ دائیں نہ بائیں, وہی روکیے. قانون بنایا کس لیے گیا؟ عقل دیکھیے, قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, تاکہ آپ کی گاڑی آگے والی گاڑی سے یا دائیں بائیں سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا نہ جائے. یہ قانون بنانے والے نے اس لیے قانون بنایا تاکہ ایکسیڈنٹ سے ہمیں بچایا جا سکے. اب ہم رات میں جا رہے ہیں اور ریڈ سگنل ہو گیا, سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, دائیں اور بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, پھر بھی آپ کو گاڑی روکنا پڑے گی کیونکہ ریڈ سگنل ہے. اب تو آٹومیٹک سسٹم بنا دیا گیا ہے, کیمرے لگا دیے گئے ہیں, اگر آپ نے ریڈ سگنل کو کراس کیا آٹومیٹک چالان کٹ گیا اور آپ کے موبائل میں اس کا میسج آ گیا. اس لیے میں سوچ رہا تھا جب یہاں تو میرے بھائیوں آٹومیٹک میسج آئے گا کہ آپ کا چالان کٹ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاڑی اب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے, گاڑی نہ آگے سے آ رہی ہے, نہ دائیں سے آ رہی ہے, نہ بائیں سے آ رہی ہے, تو اب گاڑی کو آگے بڑھانے میں یا دائیں بائیں لے جانے میں کیا حرج ہے؟ عقل کہتی ہے کہ گاڑی لے جاؤ کیونکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے ہی نہیں, سناٹا ہے ساری سڑک پر, لیکن اس کے باوجود آپ کو گاڑی روکنا پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ قانون بنا ہوا ہے ریڈ سگنل پر آپ گاڑی کو کراس نہیں کر سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ نے جو چیز حرام کر دی ہے وہ حرام ہے. آپ کی عقل چاہے کتنا کہے کہ یہ کیا ہے, ایسا کیوں کیا گیا ہے, اس میں حرج کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے, چلو یہ کما لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کی عقل کہہ رہی ہے کوئی برائی نہیں, لیکن اسلام کا قانون کہتا ہے کہ وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. آپ کی عقل اس کو مانے یا نہ مانے. جس طریقے سے ریڈ سگنل کو آپ کراس نہیں کر سکتے کیونکہ قانون بنا ہوا ہے, اسی طریقے سے اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو آپ کو حرام ماننا پڑے گا. آپ اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے اور نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے یہ رفیع نام کا جو گائیکار گزرا ہے نا, ایک بار جب سعودی عرب میں جب گیا حج کرنے کے لیے, اور حج کر کے جب وہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کہیں راستے میں خراب ہو گئی. اس کی گاڑی تو پنچر بدلنے کے لیے اور پنچر سنبھالنے کے لیے سارے لوگ نیچے اتر گئے. تو اس نے عرب کے دیہات میں کہیں گاڑی خراب ہوئی, عرب کے بدوؤں کے منہ سے گانا سنا جو بہت ہی بہونڈا اور بہت ہی بھاری آواز میں وہ گانا گا رہے تھے عرب کے وہ بدو. تو رفیع نے دیکھ کے کیا کہا, او اب میری سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے. ضرور ان بدوؤں کا گانا سنا ہوگا ان کی بھونڈی آواز میں, اس لیے آپ نے گانے کو حرام قرار دیا. اگر میرا سریلی آواز کا گانا اگر سن لیے ہوتے تو اللہ کے رسول اس کو حرام قرار نہیں دیتے. میرے بھائیوں, کسی کی سریلی آواز ہو جانے کے باوجود بھی گانا حلال نہیں ہو جائے گا, وہ حرام ہے, وہ حرام ہی رہے گا. اگر اللہ نے کہہ بھی دیا کہ انما البیع مثل الربا, کہ جو ہے بیع تجارت سود کی طرح ہے, لیکن سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا, لیکن بیع کو, تجارت کو اور بزنس کو حلال قرار دیا. اب کتنا بھی سود اور بزنس, آپ کی تجارت ایک ہی کیٹیگری کی ہو, ایک ہی طرح کی ہو, لیکن اللہ نے بیع کو, بزنس کو, تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب سود حرام ہی رہے گا اور تجارت و بزنس حلال ہی رہے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں, کسی کے کچھ کہہ دینے سے اسلام کے قانون نہیں بدل جائیں گے. ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے, ہمیں فالو کرنا ہوگا اسلام کے قانون کو. ہمارا رشتہ اسلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ 2-4 نمازیں پڑھ لی اور 2-4 روزے رکھ لیے اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم بہت پکے مسلمان ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ جو پول لگا ہے آپ کا لکڑی کا ہے, مان لیجئے یہ آم کا درخت ہے, یہ آم کا درخت ہے, اور یہ پول جو لگا ہوا ہے اس کو مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے, بجلی کا پول ہے, اس پہ ابھی تار نہیں دوڑائے گئے ہیں. یہ آم کا درخت ہے اور یہ بجلی کا پول ہے.
आम के दरख्त से तेज हवा चली, आंधी आई, सख्त थोड़ी सी हवा तेज हुई और आम के दरख्त से चंद पत्ते टूट गए और उड़ते हुए वो पत्ते बिजली के खंभे पर चिपक गए। जरा इस मिसाल को गौर से सुनिएगा। हवा तेज थी, आम के पेड़ से पत्ते टूटे, लेकिन जमीन पर गिरने के बजाय वो बिजली के पोल से चिपक गए। तो वो बिजली के पोल पर चिपके हुए हैं, तो क्या बिजली के पोल को कोई आदमी आम का दरख्त कहेगा? पत्ते हैं उस पर, चिपके हुए हैं, लेकिन 2, 4, 10, 20 पत्तों के चिपक जाने से बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो जाएगा। कोई भी अक्लमंद उसको आम का दरख्त नहीं कहेगा, जो कहेगा वो बेवकूफ है। पूछो क्यों? भाई इस पे आम के पत्ते चिपके हुए हैं, क्यों नहीं कहते हो ये आम का दरख्त है? वो कहेगा साहब आम के पत्ते की चिपक जाने से कोई बिजली का पोल आम का दरख्त हो जाएगा? आम का दरख्त तो वही होगा जो अपनी जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी, अपनी डालियों में भी आम हो, जो अपने फल में भी आम हो और जो अपने पत्तों में भी आम हो, जो नीचे से लेके ऊपर तक, जड़ से लेकर बुनियाद से लेकर आखिरी सिरे तक वो आम ही आम हो, उसको कहा जाएगा आम का दरख्त। मेरे भाइयों, 2-4 टाइम की नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 और 10 और 100, 200, 500 रुपए सदका और खैरात कर देने से हम अपने आप को मुसलमान कैसे समझने लगे हैं? ये चंद नेकियां करने से हम और आप मुसलमान कैसे हो जाएंगे? हम सच्चे मुसलमान तो तब बनेंगे जब हम हमारी जड़ भी इस्लामी हो, हमारा तना भी इस्लामी हो, हमारे फल भी इस्लामी हो और हमारे पत्ते भी इस्लामी हो। हम बुनियाद से लेकर आखिरी सिरे तक जब तक हम इस्लाम के रंग में नहीं रंगे हुए हैं, हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हमारा उठना भी इस्लामी हो, हमारा बैठना भी इस्लामी हो, हमारा चलना भी इस्लामी हो, हमारा शादी और ब्याह भी इस्लामी हो, हमारे तौर तरीके भी इस्लामी हो, हमारी गुफ्तगू भी इस्लामी हो, हमारा शादी और ब्याह भी इस्लामी हो, हमारी नमाज भी इस्लामी हो, हमारे रोजे भी इस्लामी हो, हमारी हज और ज़कात भी इस्लामी हो। तब कहा जाएगा कि आदमी अपने वजूद और अपनी बुनियाद से लेकर अब तक इस्लामी रंग में रंगा हुआ है, इसलिए मुसलमान है। चंद नमाजें पढ़ लेने से और चंद रोजे रख लेने से कोई आदमी मुसलमान हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का और हमारा ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। हमारा और इस्लाम का ताल्लुक पानी और पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी में पत्थर डाल दो, 2 दिन के बाद आप निकालेंगे, निकाल के फेंक सकते हो, ये फेंक दिया, पानी अलग पत्थर अलग। ऐसा इस्लाम और हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए कि जब चाह तब इस्लाम से निकल गए और जब चाह तब हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। हमारा रिश्ता इस्लाम के साथ पानी और रंग की तरह होना चाहिए। जलेबी खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, खाने वाला रंग डाला जाता है, जिस कलर का करना चाहता है हलवाई उस कलर का बनाने के लिए खाने वाला रंग डाला जाता है। एक गिलास पानी में आप थोड़ा सा रंग डाल दीजिए, आप कलर, ग्रीन कलर डालिए, आप पानी ग्रीन हो गया, रेड कलर डालिए, पानी रेड हो गया। आप तसव्वुर करें, जो कलर आपने पानी में डाला, पानी ने उस कलर को अपने अंदर जज़्ब कर लिया और उस रंग ने भी पानी को अपने अंदर समो लिया। अब आप उस रंग को पानी से अलग करके दिखाइए, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर जज़्ब कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल दिया। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे घुल गए कि ना पानी को आप रंग से अलग कर सकते हो, ना रंग को पानी से अलग कर सकते हो। आप फेंक तो सकते हो लेकिन अलग नहीं कर सकते हो। यही रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हम इस्लाम के साथ ऐसे रंग जाएं, ऐसे इस्लाम में ढल जाएं कि इस्लाम से कोई हमें अलग करना चाहे तो ना कर सके और हमें कोई इस्लाम से और इस्लाम को भी हमसे अगर कोई अलग करना चाहे तो न कर सके। हजरत बिलाल की मिसाल हमारे सामने है, हजरत सुमैया की मिसाल हमारे सामने है, हजरत खुबाब की मिसालें हमारे सामने होना चाहिए। वही सुमैया है जो डंके की चोट पर कहती है कि अबू जहल जब पता चल ही गया तो क्या छिपाना, हाँ मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, इस्लाम छोड़ दे। कहने लगी हरगिज छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा
आंखों के सामने बेटे को बांध दिया और शौहर को बांध दिया और नेजा लाया, कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ती है तो सुन तू अपना अंजाम समझ ले। उसने कहा अंजाम से क्यों डराता है? मोहम्मद के शहदाइयों को इस्लाम अपनी सजाओं से डराने की जरूरत नहीं, ये इस्लाम अब मेरे दिल से नहीं निकल सकता। पढ़िए मेरे भाइयों, पूरा नेजा इंदा में निहारी में दाखिल कर दिया, दाएं से डाला और बाएं निकाल दिया। और ऐसे मौके पर उसकी जबान से जो जुमला निकला वो लफ्ज़ उनसुर नहीं निकला, बल्कि ये जुमला निकला सब्बित क़दमी अला दीनिक या रब्बल आलमीन। आए सारे जहान के पालने वाले, ऐसे मौके पर मेरे दीन को साबित कदम रखना, मुझसे मेरा दीन न छिन जाए, मुझसे मेरा इस्लाम न छीन लिया जाए। इसकी दी हुई तकलीफें कहीं मुझसे मेरा इस्लाम न छीन ले। यहां मदद नहीं करे अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा, नहीं। जान ये तो एक दिन जानी ही, आज नहीं तो कल, ये तो जानी ही है। हमारे दिल से इस्लाम न निकल जाए। ऐसे मौके पर उसकी जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये निकला सब्बित क़दमी अला दीनिक। आए रब्बुल आलमीन, आए सारे जहान के रब, मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना, मेरे कदम को अपने दीन के ऊपर साबित रखना। और तबकात पढ़िए इब्ने साद की, उसमें तो यहां तक लिखा है कि 2 ऊंट बनाए अबू जहल ने, एक ऊंट इस पैर से बांधा, एक पैर इस ऊंट से बांधा और दूसरा पैर उस ऊंट से बांधा, और कहा सुमैया एक ऊंट पूरब की तरफ भागेगा, एक ऊंट पश्चिम की तरफ भागेगा, देख तेरे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब भी वक्त है कि तू इस्लाम से अपना रिश्ता तोड़ दे। और ऐसे मौके पर भी कहती है, जब बेटा मार रोने लगा और यासिर की आंखों में आंसू, तो कहती है ललकारते हुए, ये खतीबा थी, ये मुकर्रिरा थी, ये तकरीर करती है कि मेरे बेटे मेरी सजा से डर रहे हो। अरे हो सकता है कि औरत हूं इसलिए हल्की सजा दी जा रही हो, और मेरे बाप तुम दोनों को मर्द होने की हैसियत से इससे भी बड़ी सजा दी जाए। मेरे बेटे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे शौहर तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है, जन्नत के दरवाजे पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करिए, अबू जहल ने कहा अच्छा ललकारती और है, हम तो सोच रहे हैं कि तेरी जान ले लेंगे तो अम्मार और यासिर को बदल देंगे। आह चीखती हुई कहती है, आए अबू जहल, जितनी देर तुझे नेजा उठाने में लग रहा है, काबे की रब की कसम उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। चोट पे चोट, चोट पे चोट। अबू जहल ने नेजा उठाया, अपने बेटे से कहती है अम्मार, शौहर से कहती है यासिर, अल्लाह की कसम जन्नत में अपनी आंखों से देख रही हूं। कैसा पक्का कर रही है अपने बेटे को, इस इस्लाम से कैसा रिश्ता मजबूत कर रही है अपने बेटे का, और कैसा रिश्ता मजबूत कर रही है अपने शौहर का। मैं जन्नत को अपनी आंखों से देख रही हूं, मेरे बेटे मेरे शौहर मेरे पीछे पीछे चले आना, जन्नत की महक मेरी नाक तक जा रही है, तुम्हारी नाक तक नहीं। और अबू जहल ने वो कोड़ा मार दिया और ऊंटों को मुख्तलिफ सिमतों में बिठा दिया, दौड़ा दिया, सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। और याद करो अल्लाह के नबी ने जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहा था, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तो साथ में यह भी कहा था अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, आए यासिर के घराने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। ये इस्लाम था, किसी भी कीमत पर निकलने वाला नहीं है। ये हमारे इस्लाम है आज, हमारे इस्लाम है आज। चंद गीदड़ भक्तियों में हमें बांध दिया जाता है पेड़ों से और दरख्तों से, और लिंचिंग होती है, और जबरदस्ती हमसे गैर मजहब के महबूब का नारा लगवाया जाता है, और हम उसके डर से कह भी देते हैं, और हम किसी दूसरे को भगवान मान भी लेते हैं। एक हमारा इस्लाम है मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए, उस रिश्ते पर नजर डालिए। ऐसा होना चाहिए जैसे पानी में रंग घुल गया है, अब पानी को रंग से अलग नहीं किया जा सकता और रंग को पानी से नहीं। ऐसा होना चाहिए हमारा रिश्ता। इस दुनिया में हमें और आपको ज्यादा दिन जिंदगी तो मिलना नहीं है, ये तो आयतन है, हम उधार लेकर आए हैं,
हमें जाना उसी तरफ है, हमारे बाप दादा को जिस मकाम से निकाला गया है। मेरे भाइयों, हम भेजे ही गए हैं तौहीद की हिफाजत के लिए, हम भेजे ही गए हैं इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के लिए। हम हर उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना ये सारी चीजें हमको इस्लामी बनाना है। अल्लाह ताला ने जहां ये कहा कि हमने इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, वहीं अल्लाह ने ये भी फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को एक आइडियल बना दिया, एक नमूना बना दिया है। अब सुनो, पूरी जिंदगी नमूना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, और शादी और ब्याह वैसे करो जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह करते थे। और इतनी नहीं, नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, रोजा भी वैसे रखो जैसे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह रखते थे, हज भी वैसे करो, ज़कात भी वैसे दो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। एक आइडियल है, आइडियल जानते हो, मॉडल। किसी कंपनी का कोई चश्मा आपको पसंद आ जाए और आप उस कंपनी के पास जाएं और कहें कि साहब ये कंपनी आपकी है, हाँ आपने चश्मा बनाया, हाँ मुझे ऐसे 100 चश्मे चाहिए। उसने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के बाद ले जाइएगा। अब उसने सोचा कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है टाइट करने का और लूज करने का, इसकी जगह पर हम टाइट चश्मा बना देते हैं, उसमें वक्त कम लगेगा। 1 हफ्ते के बाद जब आप लेने पहुंचे, आपने कहा और देखा, आपने कहा साहब चश्मा तो अच्छा है, लेकिन हमने जो आइडियल दिया था आपको, एक मॉडल दिया था आपको कि ऐसे 100 चश्मे बनाना, आपने ऐसे नहीं बनाए। उसने कहा फर्क क्या, आपको लगाना ही तो है, आप लगा लीजिए, टाइट है। फौरन कहेगा नहीं, मुझे वो चश्मे चाहिए जो मैं बतौर नमूने के आपको देकर गया था, मुझे वो चश्मे चाहिए। आप जोहर की 10 नहीं 10,000 रकातें पढ़ लो, मगरिब की 7 नहीं 7,000 रकातें पढ़ लो, ईशा की आप 17 नहीं 17,000 रकातें पढ़ लो। मेरे भाइयों, आप फजर की 4 नहीं 4,000 रकातें पढ़ लो, लेकिन अगर वो नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमूने पर नहीं है, आपके आइडियल के मुताबिक नहीं पढ़ी गई, तो वो कबूल नहीं की जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं देखेगा नमाजें कितनी थी, उनकी रकात भी नहीं देखेगा। अल्लाह ये कहेगा कि मैंने तुम्हें तो एक आइडियल दिया था, मैंने तो एक मॉडल दिया था, एक नमूना दिया था, तुम्हें ऐसी नमाजें पढ़ना है, तुम्हें ऐसे रोजे रखना है, तुम्हारी नमाजों पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर है या नहीं। आप लाख कीमती कागज ले लो, 1 लाख रुपए का कागज ले लो, लेकिन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की मोहर नहीं है। अगर सरकार के 50 रुपए की मोहर लगी है तो वो चलेगा, नहीं तो 1 लाख का भी कागज बेकार। मेरे भाइयों, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज कितने भी कीमती हो, लेकिन अगर उन नमाजों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है तो वो नमाजें हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए कोशिश ये कीजिए मेरे भाइयों कि हम सारी इबादतें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक, आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक करें और अदा करें। इसीलिए याद रखिए, हर चीज में हम जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बनाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल नहीं करेगा। क्यों? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल और नमूना बना दिया है। आपको याद है जब हजरत उमर फारूक ने 2 सहाबियों को, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान और रुबैई इब्न आमिर को बातचीत के लिए ईरान के बादशाह के पास भेजा, किसरा के दरबार में भेजा और कहा था कि जाओ बातचीत के लिए, वो बुला रहा है, मेरा जाना जरूरी नहीं, तुम दोनों ही बात करके आओ, देखें उसकी मर्जी क्या है। जब रुबैई इब्न आमिर और हुज़ैफा इब्न यमान जब ईरान पहुंचते हैं तो वहां के दरबारियों ने कहा कि तुम्हें वो कपड़ा पहनकर जाना पड़ेगा जो हमारे दरबार से मिलता है, जो हमारे दरबार से दिया जाता है, हम इन मामूली कपड़ों में तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रुबैई इब्न आमिर ने कहा जाकर अपने बादशाह से कह दो
कि हम वही कपड़ा पहनकर जाएंगे जिन कपड़ों में हमें भेजा गया है। ये कपड़ा इस्लामी कपड़ा है और ये कपड़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। हम वही कपड़ा पहनेंगे, तुम्हारी तरफ से मिलने वाला दरबारी कपड़ा हमें नहीं पहनना। बादशाह को बात करना हो तो करे और ना करना हो तो ना करे। अंदर से जवाब आता है कि नहीं, हम ही ने बुलाया है, आने दो, जिन कपड़ों में आना चाहते आने दो। बहरहाल अंदर जब भेजा गया और अंदर जब जाते हैं ये दोनों, तो बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है। रुबी इब्ने आमिर से कहता है कि बैठ जाओ, हमने तुम्हारे लिए कालीन बिछा दी। रुबी इब्ने आमिर हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा, बादशाह या तो तख्त पर अपने साथ बिठाओ और नहीं तो तुम भी मेरे साथ इस कालीन पर बैठो, क्योंकि यहां हम तुम्हारी गुलामी को तस्लीम करने नहीं आए हैं, यहां बातचीत करने आए हैं और बातचीत बराबर में बैठकर की जाती है। या तो तुम कालीन पर बैठो या फिर मुझे भी अपने साथ तख्त पर बैठाओ। बादशाह भी सोचने लगा कि किस मखलूक से हमारा पाला पड़ा है, ये हमारे उसूल पे उसूल तोड़ता चला जा रहा है। बहरहाल बादशाह को बैठना पड़ा, तख्त पर बिठाना पड़ा और ये दोनों तख्त पर बैठ गए। बादशाह ने कहा पहले खाना खा लो, उसके बाद बातचीत का दरवाजा खुलेगा और बातचीत होगी, क्योंकि तुम भूखे हो। इन दोनों ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि हम भूखे हैं, अगर खाना खिलाते हो तो खिला दो, हमारे लिए जायज है, लेकिन हम मांगेंगे नहीं तुमसे। खाना आ गया और जैसे ही खाना आया, 2-4 लुक़मे दोनों सहाबियों ने बिल्कुल ठीक खाए, लेकिन एक सहाबी से खाने का एक लुक़मा गिर जाता है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के हाथ से मुंह में लुक़मा रखते हुए जमीन पर गिर जाता है। हुज़ैफा इब्ने यमान ने वो लुक़मा उठाया। नौजवानों जरा गौर करना, अपने बच्चों को जमीन पर चिप्स गिर जाए तो उठाने नहीं देते हो, चॉकलेट गिर जाए तो उठाने नहीं देते हो। शादियों में कितना खाना बर्बाद हो जाता है और फेंका जाता है, जरा सुनो। एक खाने का लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने वो लुक़मा उठाया और उसको साफ करने लगे। इतने में रुबी इब्ने आमिर ने कोहनी मारते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? हम मदीने में नहीं है, हम अपने इलाके में नहीं है, हम उस कौम के सामने बात करने के लिए आए हैं जो जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा उठाना पसंद नहीं करती है, और आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं, गिर गया तो गिर जाने दो। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने रुबी इब्ने आमिर का इशारा सुना, लेकिन इसके बावजूद साफ किया और खा लिया। हंसने लगा बादशाह। तो रुबी इब्ने आमिर से फिर पूछा हुज़ैफा ने, तुम क्यों मना कर रहे थे? कहा गिर गया तो अच्छा नहीं था, ये कौम गिरे हुए लुक़मे को उठाकर खाना गवारा नहीं करती। तो इस पर जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों के लिए, क्या मैं इन पागलों के वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से, क्या मैं इन पागलों की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? हमारे नबी ने फरमाया, अगर खाने का कोई लुक़मा जमीन पे गिर जाए तो उसको उठा कर देखो, अगर मिट्टी लगी है कुछ लगा तो उसको हटा दो, साफ कर दो और उसको खा लो। जमीन पर गिरा हुआ लुक़मा भी साफ करके खाने का हुक्म दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये मेरे नबी की जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या मैं सुन्नत रसूल को इन बेवकूफों के लिए, इन पागलों के लिए छोड़ दूं? बादशाह के सामने खड़े होकर मेरे प्यारे साथियों, वो दौर था जहां सुन्नतों का इतना तासुर-ए-आस था। आज हम देखें शादियों में सुन्नतों का कैसा पामाल किया जाता है, कैसे तोड़ा और मरोड़ा जाता है, और सुन्नतों पर कैसे बुलडोजर चलाया जाता है। हम यूपी और मैं और दूसरी गवर्नमेंट में बस बुलडोजर के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन खुद मुसलमान नबी अकरम की कितनी सुन्नतों पर बुलडोजर चला रहा है, खुद उसको इस बात का एहसास नहीं है। जब कुरान ने कह दिया, वानकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो। तो आए समाज के लोगों, आए जिम्मेदारों, आए समाज और गांव में रहने वालों, ये तुम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने अपने एरिया में देखो कि कौन लड़का गैर शादीशुदा है और कौन लड़की गैर शादीशुदा। ये सिर्फ लड़कियों के माँ बाप का हुक्म नहीं है कि जब लड़का बालिग हो जाए तो निकाह करा दो, या लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप
उसकी शादी करा दे। नहीं, ये हुक्म पूरे समाज और सोसाइटी को है कि तुम अपनी समाज में और अपनी सोसाइटी में नजर डालो, जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो, ख्वाह वो लड़के हो या लड़कियां। कुरान करीम तो यहां तक कहता है तुम अपने गुलाम मर्दों और लौंडियों का भी निकाह करा दो, जो तुम सालेह नेक जो हो, यानी तुम्हारे गुलाम हो या तुम्हारी लौंडियां हैं, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम नहीं चाहता कि समाज के अंदर बेहयाई पनपे। इस्लाम नहीं चाहता कि समाज के अंदर बुरे अनासुर जन्म लें। इस्लाम नहीं चाहता। समाज के अंदर नजर डालो, कौन लड़का बालिग हो चुका है? 25-25 और 28-28 साल के लड़के और 30 साल के लड़के बैठे हुए हैं, अभी उनका निकाह नहीं हुआ है। 25-25 और 30-30 साल की लड़कियां बैठी हुई हैं, अभी उनका निकाह नहीं हो रहा है। और जब तक इनके निकाह नहीं होंगे, मुआशरा पाक नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा। पाक और साफ तभी रहेगा जब बुलूगत के बाद इनका निकाह करा दिया जाएगा। आप क्या समझते हो? ये गैर शादीशुदा लोग और गैर शादीशुदा, मैं एक जुमला बोलता हूं यूपी में और बंगाल और बिहार के अंदर, मुझे नहीं मालूम कि यहां उस जुमले को पसंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन या तो मैं बहुत बदनाम हूं खुल के बोलने में, या फिर बहुत नाम है इस बात में कि आदमी कह देता है। ये खुले साल है 25-25 और 30-30 साल के लोग जो गैर शादीशुदा हैं, ये कभी भी किसी वक्त भी किसी पर हमला कर सकते हैं। और ये लड़कियां भी खुली हुई गाय हैं जो किसी भी आवारा सांड से अपना रिश्ता हम जोड़ सकती हैं। इसलिए आए समाज में रहने वालों, आए समाज के जिम्मेदारों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इनकी शादियां करा दो। समाज की जिम्मेदारी है। क्यों रहेगा बगैर शादीशुदा के?